All right, everyone. Now let's start with mode in continuous series. So first things first, that continuous series में हमें जो वेरिएबल दे रखा होता है गाइस वो ऐसे इंटरवल में दे रखा होता है. That's a real trouble, right? So in mean, what we do, we simply take out the middle value. That solves all of our problem. But that's not the same case in median and mode. So we analyze the intervals only. Now from this interval, what you can conclude, you can say that we need to calculate mode. Obviously that's the question, that we need to calculate mode from the following data. Now highest number of frequency is 6, and it is of the students who have scored between 20-30. So that's created trouble, because now between this range anything could be mode, between this 20-30 anything could be mode. You can't just say that the average, that is 25, will be the mode, which will be wrong. So we need a formula to get the value for mode. So one thing is for sure, that we know our mode lies between this. So we can call this as a modal class. Fair enough, we can call it as a modal class. So I'm gonna write it vertically for you right here as marks and number of students. Please write down the values with me. The marks are given to us as 0, 10. So 2 students have scored between this range. Then between 10 to 20, how many students have scored? 3 students, all right. Then for 20, 30, 6 students. For 30, 40, 1 student. Then 40 to 50, 2 students have scored. All right, sir. Now that beta we have written down the question already, this is also to be cleared, that this marks is none other than variable, number of students is frequency. Now one thing that we also know is our modal class, that is this 20-30, right beta? This will be our modal class. So whatever formula we are going to apply, we will be applying in 20-30 interval, because highest frequency is 6, no? तो मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही देखा जाता है, जो नंबर हाईएस्ट बार रिपीट हुआ होता है. ठीक है बेटा, मोड का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों ने पहले ही सुना हुआ है. लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटरवल दैट विल बी 20 ऑब्वियसली. देन फ्रीक्वेंसी 1 subtract frequency 0, divide it with 2 frequency 1 frequency 0 less frequency 2 multiplied with h or interval gap. So old formula, you are familiar with this already. Now lower limit is 20 from the interval that you have identified. Now बेटा ये जो मॉडल क्लास होती है ना, इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी 1 होती है, इसके ऊपर वाली की 0 हो गई, इसके नीचे वाले की 2 हो गई. बस ये करना सीख जाओ. जो मॉडल क्लास आप आइडेंटिफाई करते हो वो वाली फ्रीक्वेंसी 1, तो 0, 1, 2, जस्ट लाइक वी राइट डाउन होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2. नाउ फ्रीक्वेंसी 1 is 6 बेटा, subtract f0 to it, that will be 3 above that, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ इट माइट बी मोर देन दिस वन एज वेल, बट देखो सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे हाईएस्ट वाली ले रहे हो 6, तो इसके जो ऊपर वाली होगी वो ऑब्वियसली इससे छोटी होगी. ठीक है. सो subtract, बट ग्रुपिंग टेबल में कभी कभी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाली निकल के नहीं आती. जब आप ग्रुपिंग टेबल लगाओगे ना इसमें, तो हो सकता है कि आपकी मॉडल क्लास ये वाली निकल के आ जाए, तो आपका जो मोड होगा वो कहीं इसके बीच में आ जाएगा. तो वैसा भी हो जाता है. ग्रुपिंग टेबल भी सिखाऊंगा मैं अभी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वो तब समझ में आएगा जब मैं ग्रुपिंग टेबल बताऊंगा बेटा. नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है. अब ट्वाइस ऑफ f1 बेटा, f1 ये 6 है, 6 का ट्वाइस 12 होता है. आई एम जस्ट राइटिंग इट डायरेक्टली. 2f1 कर रहा है, f1 6 है, 6 इंटू 2 12. मैं बेटा सीधा सीधा लिख रहा हूँ. f0 ऊपर करो 3, f2 बेटा नीचे वाला है 1, मल्टीप्लाई कर दो इंटरवल के गैप से. बेटा इंटरवल है 10 का, यहाँ पर लिख दो 10. नाउ -3 -1, तो बेटा ये तो -4 हो गया. 12 -4 सीधा करके 8 लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं. 20 + 3 अपॉन 8 इंटू 10. बेटा 30/8 करना है, 30/8 करेंगे, वी विल गेट 3.75. 3.75. तो बेटा ये हो गया 23.75 मार्क्स इज आर मोड. 23.75. बेटा फॉर्मूला यही रहेगा. फॉर्मूला, एक सेकेंड, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा मोड निकालने के लिए बेटा.
बट कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बोलता है सॉल्व यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। जिसने 10th करी होगी ना, बता रहा हूँ 11th की मैथ तो पूरी हो गई होगी, 10th की स्टार्ट करी है जिसने पूरी, ये फॉर्मूला भी किया गया अज्यूमिंग। अभी सबको बेसिक फार्मूला तो क्लियर है मोड निकालने के लिए, L1 प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू वाई। उसको जीरो भी बोल सकते हो, उसको नॉट भी बोल सकते हो, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। जीरो होता है ऊपर वाला, हाँ, F1 भी F2। जो आपकी मॉडल क्लास होती है वो वाला F1, उसके ऊपर वाला F0, फिर उसके नीचे वाला F2। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सर, ठीक है, मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा। और अभी हमें करना है ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्रीट सीरीज में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब फॉर्मूला ये लगाना है बेटा, बट कि जो मॉडल क्लास आपने अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाली को आइडेंटिफाई करके लिखा था, ये बेटा पता करनी होती है ग्रुपिंग टेबल लगा के। तो उसमें मॉडल क्लास ऐसा मान लो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। सो वी विल नीड टू डू इट ऑल ओवर अगेन। आई विल क्लियर द एरिया वेयर वी सो। लेता हूँ ना, एक दिन पहले फॉर्मूला लिख के बता दिया करो आज इसकी क्लास है, मैं ये तो ऑनलाइन ले लूँगा। मेरे को लगा डिस्क्रीट में कुछ तो होगा नया महंगा, कुछ नहीं है सीधा। ग्रुपिंग टेबल स्टार्ट करना है बेटा। अभी मॉडल क्लास मान लो हमें नहीं पता इसमें क्या होगी। एल हो गई लोअर लिमिट, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू वो जो वेरी बीच का गुड, होता है इंटरवल, वेरी गैप होता है। वेरी गुड। नाउ बेटा ग्रुपिंग टेबल बनेगा एक, और एक बनेगा एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल में बेटा 6 टेबल बनते हैं, हमें पता है, ठीक है, 6 कॉलम बनेंगे। आई मीन सबसे पहले तो ये जो मार्क्स लिखे हुए हैं बेटा, ये लिख लो मार्क्स, देन लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 1। देन कॉलम 2 हमें चाहिए, कॉलम 3 चाहिए, कॉलम 4 चाहिए, कॉलम 5 चाहिए, कॉलम 6 चाहिए। बेटा स्पेस मैंने थोड़ी कम लिया ताकि एनालिसिस टेबल भी हम बना पाएँ। लेवल वाले गए थे सर से पूछना पड़ा क्या चल रहा है आजकल, कहा पूछो तो सही किसी से ना, तो क्या ना गुलाब सर से पूछते ना उनसे पूछते, मैथ वाले से पूछ लेते जो हमेशा कंप्लेंट करते थे। मार्क्स बेटा दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 30, सर मैथ के 30 में मन ही नहीं 40, करता है इस साल, क्योंकि पता है 40 11th की 50। मैथ का वो है ही नहीं यूज। तो सिर्फ अकाउंट्स कर रहा हो, इको कर रहा हो, बिजनेस रात मतलब हफ्ते में 2 दिन पढ़ लेगा खुद ही। 2 3 6 1 2। बेटा सबसे पहले कॉलम 2 और 3 जो होते हैं वो होते हैं इन टूज, ये चीज़ समझो। और जो कॉलम 4 5 6 होते हैं बेटा, ये होते हैं इन थ्रीज, ये बात समझो। 2 कॉलम बनते हैं 2 2 में प्लस करके, और 3 कॉलम बनते हैं 3 3 में प्लस करके। बेटा सबसे पहला जो कॉलम 2 बनेगा, ये बनेगा 2 2 को प्लस करके, तो 3 और 2 बेटा हो गए 6, ठीक है। यहाँ लिख लो कि ये 6 कैसे आए, 3 और 2 को प्लस करके आया बेटा, ठीक है। देन 6 और 1 बेटा 7 हो गया। 7 कैसे बताया आपने, 6 और 1 को प्लस करके, ख़त्म। अब लास्ट में 2 बचा है, इसको तो प्लस नहीं कर सकते, नीचे एक नंबर हमें और चाहिए, है नहीं, तो बस बेटा। अब ये देखो, इन सब नंबर में से 6 सबसे बड़ा था बेटा, तो 6 को आप कर लोगे इसमें सर्कल। बेटा इन दोनों में 6 और 7 में 7 बड़ा है, तो बेटा 7 को सर्कल करो, ठीक है। अब आगे चलो, थर्ड कॉलम जो बनेगा बेटा, पहला नंबर छोड़ दो, 2 2 में प्लस करो, 3 और 6 को बेटा प्लस करोगे, आ जाएगा आपका 9। 9 आया 3 और 6 को प्लस करके, तो यहाँ लिख लो बेटा 3 और 6 को आपने प्लस करा है। फिर बेटा 1 और 2 को प्लस करोगे, आएगा 3, तो यहाँ लिख लो ये 1 और 2 को प्लस करेगा। बेटा 9 और 3 में से बड़ा है 9, 9 को सर्कल कर लो, और यहाँ से ये दोनों लाइन हटा दो। आगे बेटा 4, फोर्थ कॉलम होता है 3 3 में प्लस करना है, 2 3 और 6 तीनों प्लस होंगे बेटा 11, यहाँ पर लिख दो 11। बेटा किन किन को प्लस करके आया, अच्छा इसमें तो बेटा अकेला यही होगा क्योंकि नीचे 3 डिजिट तो है नहीं, ठीक है। 1 और 2 है, तो बस यही नंबर है, तो बेटा इसको अकेले को सर्कल कर लो। बेटे किस किस को प्लस करके आया है वो लिखना ज़रूरी है, 2 3 और 6, 2 3 और 6। बेटा फिफ्थ कॉलम बनेगा आपका 3 3 में ही प्लस करना है, कंडीशन क्या है, आपका पहला नंबर छोड़ दो, तो बेटा ये 3 नंबर प्लस हो जाएंगे, नंबर आपका आ गया 10, ठीक है। 10 कैसे आया है बेटा, 3 6 और 1 को प्लस करके, 3 + 6 + 1। बेटा जो लास्ट कॉलम आप निकालोगे उसमें
आपको, अच्छा मैंने 1 2 बार लिख दिया या एक ही बार, ठीक है। 3 6 और 1 को प्लस करके कॉलम नंबर 5 बन गया। लास्ट कॉलम में बेटा आप पहले 2 नंबर छोड़ दो, 3 में प्लस करना है, 6 1 और 2, बेटा 9 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो 9, 6 + 1 7 + 2 9, 6 + 1 + 2 9। अब बेटा इसमें तो यही एक एक नंबर ही है, तो अगर सिंगल नंबर है तो हम उसी को सर्कल कर लेंगे, वरना जो नंबर हाईएस्ट होता है कॉलम में उसको हम सर्कल करते हैं बेटा। अब बनाओ ज़रा एनालिसिस टेबल। अब बनेगा आपका नेक्स्ट एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास पता करनी है तो मार्क्स यानी कि वेरिएबल हम लिखेंगे इस डायरेक्शन में, और हम कॉलम लिखेंगे इस डायरेक्शन में बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कॉलम के ना कलर्स चेंज कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ी सी स्पेस ना यार और चाहिए होगी, तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक आउट सम स्पेस फ्रॉम हियर एज वेल। लेट मी टेक आउट सम स्पेस। सफिशिएंट है इतने में काम हो जाएगा मेरा एनालिसिस टेबल के लिए ना। अब इसको मैं थोड़ा सा राइट में भी लिख सकता हूँ, थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो गई है ना, थोड़ा सा मैं इसको राइट में लिख देता हूँ। मार्क्स कॉलम। अब आप टेबल बना लो। बेटा मार्क्स दे रखे हैं 0 10 10 20 एंड सो ऑन, और कॉलम 1 2 3 4 5 6 है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। मार्क्स आपको दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और लास्ट में बेटा दे रखे हैं आपको 40 से 50, ठीक है बेटा। अब इसमें पार्टीशन करो। नाउ कॉलम आपको दे रखे हैं बेटा, कॉलम 1 2 3 4 5 6, कॉलम को भी आप वाइट से ही लिख लो। कॉलम 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल लिखेंगे हम बेटा लास्ट में। ये देखो बेटा, कॉलम 1 में जब आप देखते हो इस कॉलम में, तो इसके हिसाब से तो बेटा आपका बन रहा है मॉडल क्लास 2030, है ना। कॉलम 1 के हिसाब से बेटा मॉडल क्लास है 2030, इस पर टिक लगाना। तो इसको भी पार्टीशन कर लो, थोड़ा बेटर इवेल्युएट कर पाओगे। ये देखो बेटा, कॉलम 1 की तरफ जब हम देखते हैं तो 6 सबसे हाईएस्ट नंबर था, इसके हिसाब से हमारी मॉडल क्लास बन रही है 2030 मॉडल क्लास है। बेटा कॉलम 2 के हिसाब से ये 7 किसको प्लस करके आया था, 6 और 1 को प्लस करके आया था, तो 6 के साथ है 2030, 1 के साथ है 3040, तो इसमें 2030 और 3040 आ गया बेटा कॉलम 2 के हिसाब से। कॉलम 3 के हिसाब से बेटा 9 आया है, 3 और 6 को प्लस करके, 3 और 6 की मॉडल क्लास है 10 20 2030, तो बेटा अभी तक 2030 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। देन कॉलम 4 में जब आप देखोगे तो 2 3 6, तो इसकी मॉडल क्लास है 0 या 30 तक ये जा रहा है मॉडल क्लास में, तो 2 3 6 की ये तीनों मॉडल क्लास हैं। देन बेटा कॉलम 5 की तरफ देखो, ये था 361 में 10 20 से लेकर 30 40 वाली मॉडल क्लास है। देन जो आपका लास्ट कॉलम है वो आया बेटा 6 1 और 2 को प्लस करके, तो 20 30 30 40 एंड 40 50। अब टोटल कर दो बस, और कुछ नहीं करना। इसका टोटल आया है 1, इसका आया है बेटा 3, इसका आया है, तो सभी हो गए इसमें, तो 6 ही इसका स्कोर है पूरा का पूरा, इसमें 3 है बेटा, इसमें 1 है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट आर मॉडल क्लास विल बी आर मॉडल क्लास, ठीक है। दिस इज नॉट आर मोड डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन होता तो ऊपर वेरिएबल गिवन होता और हमारा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आ जाता, बट बेटा ये कॉन्टिन्यूस सीरीज इसलिए कि मॉडल क्लास निकल के आई है मॉडल क्लास 2030। लोअर लिमिट आ जाएगी। वेरी गुड बेटा, तो आपकी मॉडल क्लास पता लग गई कि 6 सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो वो 20 30 में आ रहा है। तो जब आपको ये 20 30 पता लग गया बेटा, तो ये आपकी हो गई मॉडल क्लास।
इसमें आपको फॉर्मूला लगाना आता है जो हमने आपको सिखाया था पहले, ठीक है। पहले इसका बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट टू, आई विल आल्सो अपलोड इट इन द ग्रुप। ऐसा सेव होगा 20 लोअर लिमिट, F1 उसके जो सामने वाला है, F0 ऊपर वाला, F2 नीचे वाला, इंटू और इंटरवल फिर लिस्ट, गया और H 5 20 बिल्कुल से 30 सॉरी 10 है। जो हमने अभी पहले करा था वही सेम चीज़ करनी है बेटा, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज़ क्लियर। ग्रुपिंग टेबल में बस प्लस करना आपको आना चाहिए। पहले 2 कॉलम क्वेश्चन वाले ही होंगे बेटा, और जो फिर कॉलम नंबर 2 बनेगा, बिकॉज दिस विल बी कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2 के लिए बेटा आपको 2 2 में प्लस करना है। कॉलम 3 के लिए भी आपको 2 2 में प्लस करना है, बस पहला नंबर छोड़ देना। फिर कॉलम 4 के लिए आप स्टार्टिंग से प्लस करना शुरू करना, बस 3 3 में प्लस करना। अरे और बेसिकली तब है ना 5 से ऊपर नंबर गया मतलब अगर 3 नंबर गया तो सीधा 6 हाईएस्ट नंबर मॉडल वो क्लास। क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा जाएगा कि आपको ग्रुपिंग से करना है या फिर आपको ऑब्जर्वेशन मतलब फिर फॉर्मूला लगाना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा या 1 नंबर का भी चलो आ जाता है, तो उस केस में फिर आपको फॉर्मूले से लगाना है। बट अगर एज्यूमिंगली क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स में आता है ऐसा, तो इट्स अंडरस्टूड कि हमें ग्रुपिंग से ही करना है। आने चाहिए मतलब। हाँ, दोनों आने चाहिए, बट कुछ टीचर्स ना ग्रुपिंग नहीं करवाते बेटा, तो स्कूल में देख लेना अगर मैम करवाएंगे ग्रुपिंग मेथड तभी करना है। अगर मैम इन केस ग्रुपिंग नहीं करवाती तो वो, तो बता रहा हूँ मैं लिखता हाँ, बट फिर भी एक बार अपने फ्रेंड से कहीं से चेक रखना कि मोड में ग्रुपिंग मेथड करवाया नहीं, क्योंकि मोड के 2 ही तरीके हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअल डिस्क्रीट में, और कॉन्टिन्यूस में ऑब्जर्वेशन से तो पता नहीं लग सकता, कॉन्टिन्यूस में तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, बट फॉर्मूले के साथ ग्रुपिंग लगेगा या नहीं वो पूछना पड़ेगा। बेसिकली जो ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस। हाँ, ये ग्रुपिंग और एनालिसिस, क्योंकि अगर ये नहीं लगेगा तो आपने यहाँ देखते बता दिया था मॉडल क्लास ये है आपकी, ठीक है, आपकी ये वाली। बट जो सबसे अगर हाईएस्ट वैल्यू है वो मॉडल फिर क्लास से होती मॉडल है, वो क्लास, मॉडल क्लास होती है, ठीक उसके है। ऊपर वाला F0 नीचे इसके F2। ऊपर फॉर्मूला लगाना आप सबको आता ही है, बट फिर भी जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है मैं बता देता हूँ। आज बच्चे ही नहीं है, आज काफ़ी कम स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लास ले रहे हैं। 2 बच्चे। हाँ क्या आज, बस आ जाएगा वेडनेसडे, आज कोई नहीं लेता। ठीक है बेटा, मॉडल क्लास हमने बता दी थी हमारी ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 होगी, इसकी ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 होगी, इसके नीचे वाली F2 होगी। फॉर्मूला आप सब लोगों को आता ही है। मॉडल क्लास पता होने के बाद आपको मोड लगा निकालने के लिए L1 चाहिए, F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स इंटरवल गैप। सो बेटा L1 हमारा लोअर लिमिट का 20 है, एच भी लिख सकते हो, हाइट भी बोल सकते हैं उसको, इंटरवल का गैप भी बोल सकते हैं इसको, डब्ल्यू विड्थ भी बोल सकते हो। जनरली 11th क्लास की बुक्स में इसको आई ही लिखा गया है इंटरवल, मैथ्स में इसको जनरली एच से हाइट से रेफर करा जाता है। हाँ, कोई दोनों करेक्ट है, मैंने 1 साल तो करा 10th बोथ आर अच्छे करेक्ट। से करिए, सारा यूज हो रहा है मैं कह रहा हूँ। नाउ फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6, F1 इज 6, F0 ऊपर का होता है 3, देन ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी में बेटा ये 2 है, थोड़ा क्लियर नहीं आया, ये 2 लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, दिस इज ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। 2 इंटू 6 इज 12 बेटा, ठीक है, माइनस F1 आपका है 6, देन सॉरी F0 आएगा यहाँ, तो F0 है आपका 3, देन F2 है आपका 1, मल्टीप्लाई कर दो इंटरवल से, दैट इज 10 बेटा, सो 20 प्लस 3 बाई ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा यहाँ पर 8 आ जाएगा, सेम जो हमने पहले करा था। तो बेटा 3.75 आ जाएगा ये सॉल्व करके, 3.75 प्लस 20 इज 23.75 मार्क्स इज योर मोड। तो बस दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोड। मैंने विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एस्पेक्ट। मैंने क्वेश्चन दो। I'll stop the recording for continuous series mode. I believe सबको क्लियर हो गया होगा। I'll stop the recording now.